Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So today we are taking up the next two questions of GS2 Polity from 2022. So first question is question number 11. It is asking that you have to discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of MP under the RP Act. What are the grounds on which election it can be declared as void, and what is the remedy available to the aggrieved party? And you have to refer to the case laws also in order to discuss this thing. So I started that recently. There is like delay or opposition to decisions regarding the disqualification of legislators. It has attracted attention. So I've basically connected to it to the present context. Then I've written that MP it can file a petition in the court over disputes. So this is in the context that what is the first part talking about? You have to discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election. So you can file a petition and later appeal the decision if you don't agree to that. So understanding it through the Indira Gandhi versus the Raj Naran case, I have taken this example and explained it a little bit, that we saw for the first time the election of the Prime Minister of India, it was set aside on usage of the corrupt practices. And this itself becomes one of the grounds on which the election can be declared void. So then I further explained that she was barred from contesting the elections and the decision of the Allahabad High Court, and how basically then things changed and national emergency was imposed. Then I came to that there exist certain exceptions to it, like here we're talking about defection. So if they're like 2/3 of the MPs who are defecting and they merge with another political party, so they would not be disqualified. And this was visible in case of Maharashtra also, when the MLAs of Shiv Sena they defected and they weren't disqualified. Then such disputes they are decided by the speakers of the house, and then also there we talk about that there's no time limit. Even Constitution does not talk about that, but recently we saw that Supreme Court said that you need to decide it within 3 months. Then I moved on to that what are the other grounds of nullifying this election. So I talked about the Lily Thomas case and explained it a little bit further. If like what are all other grounds on which we can be basically call this election to be void. These are mentioned point number 345. Then I talked about RPA 1951. This is the last part of the question, that what are the remedies available. So one of the remedies under this act is through Election Commission of India. It can either remove or reduce the period of person's disqualification. So here I again cited one of the examples that this was visible when the sentence of the Chief Minister of Sikkim that was reduced by ECI, who was serving a sentence of corruption, so that he could contest the by-elections. So, but this remains a debatable topic of free and fair elections versus the political interests that exist. And also, it's important to fix the accountability of the Speaker of the House to remove the ambiguity when it comes to the decision-taking power of the Speaker of the House. So, this is the complete answer. You can give your review now, Ashik. आपने क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली बात कि डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एमएलए भी हो सकता है, अंडर आरपी एक्ट 1951। तो आपने फिर इसको एक पहलू बताया, वो है इंदिरा गांधी वाला केस बताया। आप रेफर टू केस लॉज लिखा है, ठीक है। डिस्कस द, हाँ ठीक है, डीसी व नीचे करें डिस्कस किया है। हाँ 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 ठीक है, वो सर नीचे वाला करें। मैंने एक्सेप्शंस भी लिखे। हाँ, मतलब मैंने कोशिश ये करी है कि मैं इसको अपने वर्ड्स में लेके आऊं आंसर को, और इसको फैक्चुअल ना करूं, क्योंकि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पहले प्रोसीजर्स बताने हैं, वो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, फिर उसका क्या पॉइंट हुआ। फिर आपको ग्राउंड्स बताने हैं, वो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद रेमेडी क्या अवेलेबल है, ये भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो करंट केसेस से रिलेट करके सारी चीजें, सारे डिमेंशंस कवर करने की कोशिश करी है मैंने। अब अपने हाँ तो दो आपने फिर एमपी कैसा एमएलए का बता दिया, शिवसेना वाला, ठीक है। उसके बाद फिर स्पीकर का बिल्कुल बताया, पावर्स के बारे में बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो बता दिया। फिर वो पूछा था ग्राउंड्स ऑफ नलिफिकेशन क्या है व्हाट उसमें। आर द ग्राउंड्स। जो केस था उसके थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया वन ऑफ द ग्राउंड्स, जो बाकी थे वो मेंशन कर दिए। हाँ ये ठीक है। फिर रेमेडी के बारे में पूछा था, वो भी थोड़ा रिलेट करके लिखा है, और फिर एंड में थोड़ा अपना हाँ ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपने जस्टिफाई किया है आंसर लिखकर।
क्योंकि वर्ड लिमिट भी 250 थी ना, तो इसलिए फिर तो प्रॉपर्ली हाँ एक्सप्लेन किया सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द इसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर and discuss the legality of repromulgation of the ordinances without placing them before the legislature. So यहाँ पे मैंने mention किया कि अभी किस context में governor news में चल रहा है कि पहले तो लिखा कि it plays an important role of catalyst between center and states, and recently it is being witnessed that governor is acting like a roadblock in carrying out the constitutional machinery in various states. So governor enjoys legislative power की बात हो रही थी, तो वहाँ पे ordinance issuing power की मैंने mention कर दिया, but कुछ conditions है जिसके अंडर ही आप ordinance issuing power को use कर सकते हो। तो condition 1 to 3 mention कर दी in short, किस कंडीशंस के अंडर आप यूज कर सकते हो। सो इट नीड्स टू बी कैरिड आउट पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, एज इट लीड्स टू द एक्सेप्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल। सो एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता है, तो इसलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है गवर्नर की, एंड ही और शी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो इस केस में बेसिकली एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स द लेजिस्लेटिव फंक्शन। सो समटाइम्स वी सी कि अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग जो भी कंडीशंस ऊपर लिखी है मैंने 1 2 3, ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पे ऑर्डिनेंस को यूज किया गया है एज एन इंस्ट्रूमेंट टू बाईपास जो जुडिशियल वर्डिक्ट्स रहे, एंड एज अ टूल टू सेंट्रलाइज मोर पावर। सो वो मैंने एक्सप्लेन किया थ्रू दिस एग्जांपल ऑफ जो भी चल रहा है न्यूज में, यूटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस द यूनियन। सो उसमें अभी एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया था व्हिच वाज टॉकिंग अबाउट टेकिंग अवे द दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, एंड ये बेसिकली ये इसलिए मैंने दो चीजें मेंशन करी कि बाईपासिंग जुडिशियल वर्डिक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसके बाद ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया। देन रीप्रोमल्गेशन के बारे में मैंने बात करी है, लीगैलिटी की बात करी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ये जो रीप्रोमल्गेशन और लीगैलिटी वाला चीज थी, ये हाईलाइट हुई थ्रू द स्टेट ऑफ बिहार जब इट रिलाइड एक्सेसिवली ऑन इशूइंग ऑर्डिनेंसेस। सो डीसी वाधवा केस की बात करी कि पूरा इशू फिर वहां लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि री इशूइंग एग्जैक्टली सेम ऑर्डिनेंस आप री इशू करोगे विदाउट गेटिंग देम पास बाय द लॉ एज लॉ बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड री इशूइंग आप कर सकते हो अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बोलता कि आप री इशू नहीं कर सकते हो, but using it as an alternative to legislating power of the state assembly, that is something which is not acceptable or which cannot be allowed. So इसकी वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि parallel government create हो जाती है, which leads to violation of basic structure. So I feel कि ordinance it needs to be promulgated but proper safeguard होने चाहिए, respecting the foundational principles of constitution and adhered least जब हम re-promulgation की बात करते हैं। तो यहाँ आपने पे एसेंशियल कंडीशन बता दिया, लेजिस्लेटिव पावर द गवर्नर, स्टार्टिंग में 4 डायमेंशन है। हाँ ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन बताया ऐसा आपने नीचे। तो केस लॉ डीसी वाधवा केस, हाँ, मतलब ठीक। बिहार के बारे में बात करी जब ये लाम लाइफ में आया, मतलब ये सबसे पहले ये इशू क्रॉप अप हुआ। हाँ ठीक है, वो इमरजेंसी में किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता, हम्म। आर्बिट्री हो जाएगा। तो डिफरेंट यहाँ पे थोड़े डायमेंशंस एक्सप्लेन कर दिए कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज कर सकते हो, फिर से रीप्रोमलगेट कर सकते हो, बट इसको आप एज एन ऑल्टरनेटिव नहीं यूज कर सकते हो कि लेजिस्लेटिव की जो लेजिस्लेचर की पावर्स होगी उसको आप हमेशा बाईपास करके ही एग्जीक्यूटिव हमेशा लॉ बनाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ। जो बेसिक हमारे फिर वो प्रिंसिपल्स भी हैं सेपरेशन ऑफ पावर के, वो भी वॉयलेट होंगे। सो पैरेलल गवर्नमेंट मेंशन कर दी, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन लिख दिया खुद वर्ड्स में थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा था कि कंडीशंस क्या है, एसेंशियल कंडीशंस जिसके अंडर आप इशू कर सकते हो ऑर्डिनेंस, हाँ तो एंड आपने बता दिया लीगैलिटी। एसेंशियल कंडीशन और डिस्कस कर दिया उसको। हाँ, अब पहले आपके ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन वाला है। इसमें प्रोसीजर मतलब कि इसमें दोनों बात कर रहा था, हम्म। स्पीकर का भी, इलेक्शन कमीशन का भी, वो प्रोसीजर का बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो दोनों सारे आ जाएंगे आप। फाइलिंग ऑफ पिटिशन, लेकिन यहाँ डिस्कस डिस्पोज प्रोसीजर ऑफ एमपी अंडर द रिप्रेजेंटेशन, हियरिंग ऑफ grounds for कि वो declaration of election as void, corrupt practices, hunting। ये आपने देखो जो मैंने बोला आपने एग्जैक्टली वही किया। आपका डायमेंशन तो लेकिन उसमें कंप्लीट डायमेंशन है, कंप्लीट डिस्कस नहीं की, है क्या ये। हुआ? आपने, मैं कह रही हूँ कंप्लीटली मिसिंग है आपका डिस्कशन, आपके पॉइंट्स, हम्म। डिस्कशन तो बिल्कुल ही एब्सेंट है। जो मैं बोल रही थी कि ये चीजें कॉपी पेस्ट हो सकती है, आपने तो वही किया हुआ है। आपने जो 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन के, तीनों लिखे हैं, बट एग्जैक्टली
पूरा फैक्चुअल है। हाँ इसका मतलब आपने खुद एक्सप्लेन नहीं किया इसको कि क्या होता है, कैसे क्या हुआ, और केस लॉस भी नहीं लेके आए आप। रेमेडी अवेलेबल आपने हाँ केस तो इसका निकालना था, वो अपील। आइडिया नहीं था कैसे इसका। हम्म आगे एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑर्डिनेंस वाली एसेंशियल कंडीशंस आपने मेंशन की हैं। ये सब है, ठीक है। देखो, ऑर्डिनेंस शुड बी रीपब्लिश इफ प्रेजेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे भी आप तो केसेस बाईपास, लेके आए। हाँ केस नहीं था इसमें, केस का यहाँ पे आइडिया नहीं ये था एक्सप्लेन इसमें। कर दो लास्ट में आपने क्या लिखा है। मतलब कि जो रिप्रोगेशन ऑर्डिनेंस तभी हो सकता है ना जब प्रेसिडेंट नॉट सर्टिफाइड स्टार्टिंग में, वापस हम्म इसको री इशू कर सकते हैं। और वो समटाइम इट इज यूज्ड टू बाईपास द स्क्रूटिनी ऑफ द लेजिस्लेचर, हाँ क्योंकि उसका टेक्निकल है कि आपको 6 वीक्स बिफोर द असेंबली, आफ्टर द असेंबली होना चाहिए, लेकिन हम्म, कभी कभी नहीं होता है। तो हाँ इट कुड बी डिक्लेयर्ड एज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस देयर इज अ ग्रेव इमरजेंसी कंडीशन, रीप्रोमोशन शैड नॉट हैपन, मतलब नहीं होना चाहिए उसको। हम्म तो इसका केस लेके आए थे, वही वाद वाला केस था बिहार वाला। हाँ तो केसेस आते और अपने पॉइंट्स भी, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो रीसेंट अभी न्यूज में चल रहे हैं, दो तीन चीजें वो ले। हाँ उसका इसी में अंदर में जो लिखा हुआ था ना हाँ कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का, उसका केस लेके आया था जो एक, दिल्ली वाला जो केस नॉर्थ ईस्ट में वो हुआ ले था। आए हाँ थे। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन वाला जो है, ये लेके आए थे महाराष्ट्र का, दूसरा वाला तमिलनाडु का, जो भी हाल फिलहाल नीट का हुआ हाँ था। वो भी चल रहा है तो गवर्नर का। हाँ बट ठीक है ऑर्डिनेंस ठीक के है। कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो चीज मेंशन नहीं करी। वो तो बिल पेंडिंग है ना, वो उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो इशू है बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो लेकिन वही बात है, यहाँ पे भी आपके जो एनालिसिस है वो कम्प्लीटली मिसिंग है। पहले आपने बात करी इसेंशियल कंडीशंस क्या है यहाँ ये। पे पॉइंट वो मिसिंग, मतलब डायमेंशन बस है इसका। हाँ मतलब जस्टिस नहीं कर रखी आपने आंसर्स के साथ दोनों ही उसमें। बिल्कुल मैं बोलूंगी, मतलब बहुत कुछ आप लिख सकते थे। मतलब आपके एफर्ट्स नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं दिख रहा कि आपने कोशिश करी है एड्रेस करने की। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आंचल के हैं। अच्छा इसने पहले के भी आंसर्स लिखे हैं। तो ये है श्रीलंका और इंडिया वाले रिलेशंस वाला क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे। इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए इन द करंट श्रीलंकन क्राइसिस। सो रिलीजन, बुद्धिज्म, कल्चरल एक्सचेंज, रिस्पेक्ट टू डांस आर्टिस्ट between the two countries, build up a strong relation between has rulings and ये थोड़ा बड़ा हो गया फिर वही, मतलब सारे डायमेंशन आप एक ही जगह ले आए। थोड़ा छोटा कर देते, मतलब जैसे हमने कल इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखा था कि हमने ये बुद्धिज्म वाला कॉन्टेक्स्ट ही दिया था, तो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर देते और थोड़ा। पहला पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ दोनों सेम। This helps in creating a long history of the cultural हाँ ये सेम है। India played role in the following ways. So peaceful integrated neighborhood policy में provided humanitarian assistance, no political intervention by the Indian during the crisis, just following the model of good governance। नहीं ये तो justice नहीं हुआ, कोई political intervention नहीं और model of good governance with no interference in other countries' issues। हम्म इसको या तो थोड़ा रीफ्रेज करके थोड़ा सा लिख सकते थे आई गेस, पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द टसल बिटवीन कंट्रीज, नहीं यहाँ पे भी स्टेप नहीं आया कि क्या स्टेप लिया इंडिया ने। टूरिज्म प्रमोशन आप लेके आए, इंडियंस मेंटेन्स ओल्ड एज लेगेसी, कवरिंग आर्ट एंड कल्चर। एंड अब मतलब एग्जाम्पल्स लेके आते कि टूरिज्म में भी इंडिया कैसे हेल्प कर रही है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रही है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जा रहा है। So the peace, non-violence, usage of the Mahatma Gandhi International Brotherhood Consensus on Religious Tolerance policy of Ashoka has been put ज्यादा in। हो गया, हाँ सबका ही लिया है यहाँ। एक भी, हाँ सबके एक लेके आते का। हम्म देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिम्स्टेक वाला है, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक और सार्क। बिम्स्टेक आपने लिख दिया, दैट इंक्लूड्स साउथ एशिया, आपने कंट्रीज मेंशन कर दी, साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन इंट्रोडक्शन को थोड़ा और अपने वर्ड्स में लेके आते, कुछ एनालिसिस एनालिटिकल पॉइंट लेके आते। बिम्स्टेक ट्रेसेस बैक टू दिस, बिम्स्टेक की आपने हिस्ट्री बता दी, ये बता दी। पहले तो ये पूछा था कि क्या आपके हिसाब से दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है, तो आपको पहले वो लेके आना था। अच्छा आपने लिखा है देम इम्प्लाइज दैट कोऑपरेशन रिकॉग्नाइज देम एज पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा आपने बोला कि दोनों पैरेलल हैं, तो फिर आपको जस्टिफाई करना था कि आप क्यों बोल रहे हो कि दोनों पैरेलल हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, देन आपने सिमिलैरिटीज की बात करी।
इंक्लूड्स कोऑपरेशन फॉर एरियाज आपने मेंशन कर दिए, ठीक है, पर यहाँ पे भी अगेन कुछ एनालिटिकल कुछ डिफरेंट नहीं आ पाया, सिंपल एंड प्लेन एकदम। काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम्स, डिसिमिलरिटीज हैं। चाइना वाला नहीं लेके आए कि उसमें बिम्स्टेक अलग है, सार्क कैसे अलग है, सार्क थोड़ा ब्रॉड बेस्ड है, वो एनालिटिकल पॉइंट्स मिसिंग है कम्प्लीटली। सो फिर यहाँ फॉरेन पॉलिसी वाला एलिमेंट तो कम्प्लीटली मिसिंग है, जो क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल कर रहा है थ्रू बिम्स्टेक, उस पे आपने कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट, कौशिक आपको कुछ बोलना है इस पे? नहीं, बस चेंज करना हुआ इसको, बस हम्म हाँ, जिसमें पहले लिखा है छोटा करना है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ legislative powers the governor is legality, ये है अच्छा ऑर्डिनेंस वाला क्वेश्चन, गवर्नर वाला। so essential condition of the exercise the legislative powers the governor, they are appointments of governor by fulfilling all the constitutional provisions। essential conditions पूछा for exercise of legislative powers, so यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर के कंडीशंस, किस कंडीशन के अंडर इशू कर सकते हो उसकी बात करनी थी। डिस्क्रिशनरी पावर फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट, ये तो नहीं है, तो आप दूसरे उस पे चले गए, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में चले गए। लीगैलिटी ऑफ रीप्रमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस की आपने बात करी, गवर्नर कैन व्हेन द प्रेसिडेंट सैटिस्फाइड विद द एक्शन, इट कैन ओनली बी डन इन एक्सेप्शनल सिनेरियोज, इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द लॉ, इट कैन बी सेड इन वन केस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। समझ नहीं आ रहा क्या लिखने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। मैक्सिमम पीरियड फॉर ऑर्डिनेंस में फैक्चुअल चीजें नहीं लेके आनी थी। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा और सिंपल लिखो, और थोड़े कॉन्टेक्स्ट, जो करंट कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स चल रहे हैं वो लेके आओ, थोड़ा सा सिंपल लेके आना है। मतलब आप ऐसे कर रहे हो कि सपोज गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो गवर्नर से रिलेटेड जो भी आपको पता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप वो सब लेके आ गए, तो क्वेश्चन तो वो पूछ ही नहीं रहा था। तो एंड होते हैं यहाँ पे। दिव्या आपको कुछ बोलना है? आंचल आपको पहले वाले आंसर्स पे कुछ बोलना है? दिव्या आपको समझ में आया कुछ? क्या आपका आज का टेक है, थोड़ा बताओ, आपकी लर्निंग क्या है आज के सेशन से? कि करंट में जो चीजें चल रही है उनसे कनेक्ट करके, उनसे जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चीजों को डालना, ना कि उनको जो हमें पता है या फिर फैक्ट्स है या फिर जो कहीं से भी इजीली प्रोवाइड हो सकते हैं, बट क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए करंट से कनेक्ट कर कर और जो होने चाहिए उस चीजों से रिलेटेड उस पर फोकस करना है। मैं न्यूज़पेपर को देखते हुए कि उनमें क्या चीजें चल रही है किस तरह से। ठीक है, और आंचल अपनी लर्निंग्स भी बता दो। ये थोड़ा थ्योरेटिकल वे आ गया, एनालिटिकल वे नहीं आ पाया, तो वो लाने की कोशिश करनी है। हाँ, सबसे पहले मतलब मैं यही बोलूंगी आपके लिए कि पहले क्वेश्चन को की जो डिमांड्स है उसको पहले समझने की कोशिश करो, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से कि क्या पूछ रहा है, फिर उसको आप अपना आंसर लिखने की कोशिश करो। और यही है कि थोड़ा फैक्चुअल चीजें हैं जो, उसको थोड़ा कम लिखो, अपना एलिमेंट जो अपना एनालिसिस है वो लेके आने की कोशिश करोगे, न्यूज़पेपर से थोड़ा रिलेट करके सोचोगे बैठ के, तो पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है? हाँ, Okay, so let's close this session. So that's all for today. Thank you so much for joining ठीक है us. मानसी, हाँ हाँ, कर दो। और कुछ बोलना है तो नहीं आप सर, बोलो। Okay, so let's call it a wrap for today. Thank you so much for joining us, and do subscribe to the channel if you haven't, and do hit the like button for this video as well. Thank you so much.